آپ بھی مردانہ کمزوری سے پریشان حال ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سائکرس ہربل پروڈکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کر رہے ہیں فائل آف۔ جی ہاں ناظرین، یہ حلوہ جو کہ تقریباً 49 جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ایک بہترین نسخہ ہے جو کہ مردانہ جنسی کمزوری کو دور کرتے ہوئے جسم کو قوت و طاقت بخشتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں مریم فاطمہ، ایشین ٹی وی نیوز کی اسپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں۔ دیکھتے ہیں 7 جون کی اسپیڈ نیوز۔ سری نگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں غیر مقامی میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز پوسٹ کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ حکام نے اطلاع دی ہے کہ متعدد اسٹوڈنٹ اور جونیئر ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، جس پر ایک میسیجنگ ایپ پر گستاخانہ ڈسپلے فوٹو پوسٹ کرنے کا الزام ہے۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمرز ADR کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں جیتنے یا پھر 105 امیدواروں کی تعلیمی لیاقت 5ویں تا 12ویں جماعت ہے، جبکہ 420 امیدواروں کی تعلیمی لیاقت گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پہلے لوک سبھا انتخابات سے اب تک کم تعلیم یافتہ امیدواروں کی تعداد میں اہم اضافہ ہوا۔ 2024 کا الیکشن وزیر اعظم نریندر مودی کے چہرے پر لڑا گیا، مگر انتخابی نتائج سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی مقبولیت کم ہونے لگی ہے۔ ایک طرف جہاں وہ خود بنارس سے بڑی مشکل سے 1,54,000 ووٹوں کے فرق سے جیت پائے، وہیں دوسری جانب اپنی دھواں دار انتخابی مہم کے دوران انہوں نے جن پارلیمانی حلقوں میں ریالیاں کی، ان میں سے تقریباً آدھی سیٹوں پر BJP اور NDA کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ PDP جو ایک زمانے میں کشمیر کے سیاسی افق پر پورے جاو جلال کے ساتھ رہا، یہ پارٹی حالیہ لوک سبھا فگن تھی، آج اس کا وجود دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں نہ صرف کوئی بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی، بلکہ پونچھ، راجوری سمیت کشمیر کے 10 اضلاع کے 54 اسمبلی حلقوں میں سے صرف 5 حلقوں ہی پر برتری بنانے میں کامیاب ہوئی۔ چندرا بابو نے وزارت داخلہ اور دفاع مانگ لیا ہے، اسپیکر کے عہدے پر بھی دعویٰ۔ نتیش کمار کی پارٹی اگنی ویر پر نظر ثانی کی متمنہ یکساں سول کوڈ کو سردخانے میں پہنچانے کا اشارہ، نڈا کے گھر پر میٹنگ ہوئی۔ اڑیسہ کے رخصت پذیر وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد اپنے نومنتخب ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ میں انہیں دلاسا دیا۔ نوین پٹنائک نے کہا کہ جب انہوں نے ریاست کا چارج سنبھالا تھا تب 70% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے 24 سالہ دور میں انہوں نے اسے 10% تک لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJD ریاست کے لیے کام کرتی رہے گی۔ پارلیمانی انتخابات میں انڈیا اتحاد کے دہلی کی تمام 7 سیٹیں ہارنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی اسمبلی انتخابات اکیلے لڑے گی، کانگریس سے اتحاد نہیں کرے گی۔ میرا روڈ تشدد معاملے میں 4.5 مہینے سے قید بند کی صحبتیں جھیلنے والے ملزمین کی ضمانت عرضی پر سنوائی کسی نہ کسی سبب ٹلتی ہی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر 5 جون کو ہونے والی سنوائی جج DR دیش پانڈے کے اچانک رخصت پر چلے جانے سے ٹل گئی، اور اب اگلی سنوائی 11 جون کو ہوگی۔ آج دہلی کی ایک عدالت نے کانگریس لیڈر کارتی P چدمبرم کو مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے انہیں 1 کروڑ کے بانڈ کی رقم چکانے کا حکم دیا تھا۔ خیال رہے کہ کانگریسی لیڈر پر 263 چینی شہریوں کے ویزا کو منظوری دینے کے لیے 5 لاکھ روپے رشوت کا اکٹھا کرنے کا الزام تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے باقاعدہ پریس کانفرنس منعقد کر کے اعلان کیا کہ وہ ریاست میں BJP کی شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں۔ فوری طور پر ان کے حلیفوں نے خاص طور پر وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور NCP اجیت کے سینئر لیڈر چھگن بھجبل نے انہیں ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کینیڈا اور ہندوستان کے باہمی تعلقات میں کشیدگی کے دوران کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزیر اعظم مودی کو لوک سبھا انتخابات میں جیت حاصل کرنے کے لیے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے مودی حکومت کے ساتھ کام کرے گا۔
28 जून को ईरान में होने वाले सदारत इंतखाबात में साबिक सदर महमूद अहमदी नज़ाद ने भी उम्मीदवार बनने का ऐलान किया, जिसके बाद अब एक बार फिर से वो खबरों की जीनत बन चुके हैं। महमूद अहमदी नज़ाद 2005 में पहली बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए थे और इन्होंने 2013 में ओहदा छोड़ा था। स्पेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गजा में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्लकशी के मुकदमे में फरीक बनने का ऐलान किया है। इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के स्कूल पर हमला करने का एतराफ़ किया और कहा कि वहां हमास के जंगजू छुपे थे। ख्याल रहा कि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस ने कम अज़ कम 149 ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जहां जंग मुतासरीन पनाह लिए हुए थे और हर मरतबा इसराइल वहां हमास की मौजूदगी साबित करने में नाकाम रहा। एक शर्मनाक और तराख़ी से मुतल्लिक़ तेलंगाना पुलिस के वेबसाइट और एप्स के नेटवर्क बशमूल TSCOP से बड़े पैमाने पर डेटा को हैक करके ऑनलाइन लीक किया गया है। डेटा सिक्योरिटी रिसर्चर श्रीनिवास जिन्होंने इस लीक को दरियाफ्त किया ने भी हैरान कुन तौर पर पाया कि हैदराबाद पुलिस दीगर चीज़ों के अलावा होटलों में चेक करने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है। नई डेटा की खिलाफ वर्जी इसके चंद दिन बाद सामने आई है, जब ये इत्तला दी गई थी कि तेलंगाना पुलिस की सिटीजन सर्विस हॉक आई एप्लीकेशन का डेटा भी ऑनलाइन लीक हो गया। लालागुड़ा में पेश आए एक वाक़े में एक शख्स ने पुलिस से बचने की कोशिश में एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से ही छलांग लगा दी, जिसके सबब इसकी मौत हो गई है। इस शख्स की शिनाख्त विनय कुमार 36 साल के तौर पर हुई है और इसके दोस्त मुबैना तौर पर बिल्डिंग में ताश खेल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में इसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। टास्क फोर्स के ऑफिसर ने टीम को अलर्ट कर दिया। मुबैना गैर कानूनी सरगर्मी उस वक्त सामने आई जब टास्क फोर्स के एक ऑफिसर को, जो इसी महल्ले में रहता है, को इसकी इत्तला मिली। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात यानी कि IMD हैदराबाद ने आज शहर के तमाम इलाकों में गरज और चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की भी पेशन गोई की है। मुतवक्का बारिश के पेश नज़र महकमे ने शहर के तमाम जोनों बशमूल चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, LB नगर, सिकंदराबाद और श्रीलिंगमपल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया। शिवसेना UBT के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने कहा है कि TDP और JDU जो मरकज़ में अगली NDA हुकूमत बनाने की कलीद है को लोकसभा स्पीकर का ओहदा हासिल करने पर इसरार करना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में ठाकरे ने दावा किया कि जैसे ही BJP हुकूमत बनाएगी वो अपने इत्तेहादियों की जमातों को तोड़ने की कोशिश करेगी। नए याद आने वाले NDA में BJP के मुमकिन हलीफों को एक आजिज़ाना मशवरा स्पीकर का ओहदा हासिल करे। हैदराबाद के बहुत से नौजवान मुबैना तौर पर एक नए डेटिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं, जिससे हद से ज़्यादा बिल अदा करना पड़ रहा है। इस घोटाले में पुरकशिश लड़कियां मर्दों को पहले से तयशुदा जगहों पर मिलने को कहती हैं और फिर इनके पास 5 अदद बिल अदा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हैदराबाद में डेटिंग के नए स्कैम का तरीक़ाकार, स्कैम में मुलविस लड़कियाँ डेटिंग ऐप्स पर नौजवानों को ढूंढती हैं और फिर इनसे हैदराबाद के पहले से तयशुदा पब्स में मिलने को कहती हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा के अजीज़िया ज़िले में इनके घर में लिफ्ट के हादसे में 2 हिंदुस्तानी आज़मीन हज की मौत हो गई। जान गंवाने वालों की शिनाख्त काटियार ज़िले के रहने वाले 74 साला मोहम्मद सिद्दीक और बिहार के किशनगंज के रहने वाले 64 साला मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ के तौर पर हुई है। ज़राए के मुताबिक मुतासरीन को बिल्डिंग नंबर 145 में रह रहे थे। ज़राए ने बताया कि एक ने लिफ्ट से नीचे गिरी और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इनका इंतकाल हो गया, जबकि दूसरा लिफ्ट के दरवाजे के दरमियान टकराने के बाद कुचलने के सबब इनका भी इंतकाल हो गया। सऊदी अरब के सर्जन्स ने जुमेरात 6 जून को रियाज के किंग अब्दुल्ला स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक पेचीदा सर्जरी के बाद फिलिपीन जुड़वा बच्चों अकीज़ा और आयशा यूसुफ को कामयाबी के साथ अलग कर दिया। अकीज़ा और आयशा, जिनका एक साथ वजन 18 किलोग्राम था, सीने, पेट और जिगर के निचले हिस्से में शरीक थे। तकरीबन 7.5 घंटे तक जारी रहने वाली ये सर्जरी 5 मराहिल में की गई, जिसमें 20 माहिरीन, नर्सों और तकनीकी माहिरीन ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में 27 मई को हुए वरंगल, खम्मम, नलगोंडा ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जुमे को शुरू हो गई। गिनती जुमेरात की सुबह 8 बजे नलगोंडा शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई A डोपलापल्ली स्टेट गोदाम कॉरपोरेशन के गोदाम के 4 हॉलों में शुरू हुई। 4 राउंड में से पहले वोटों की गिनती जुमेरात की रात ही मुकम्मल हो गई थी।
कर्नाटक हुकूमत ने कमल चंद्र की हिदायतकारी और अनु कपूर की अदाकारी वाली हिंदी फिल्म हमारे 12 की रिलीज़ पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। ये फिल्म जुमे को रिलीज़ होने वाली थी। रियासती हुकूमत ने फ़िरका वाराना बदअमनी के खदशे के पेश नज़र कर्नाटक सिनेमा रेगुलेशन एक्ट की दफ़ा 15(1) और 15(5) के तहत ये पाबंदी आयद की है। इस पाबंदी का इत्तलाक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के ट्रेलर की नुमाइश पर भी होता है। सऊदी अरब में सुप्रीम कोर्ट ने ज़िलहज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वक़ूफ़ अरफा 15 जून जबकि ईद उल अज़हा 16 जून को सऊदी अरब में होगा। एक अहम पेशरफ में कर्नाटक के बेंगलुरु की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की रियासती इकाई की तरफ से पे सीएम मुहिम पर दायर करदा हतक इज्जत के मुकदमे में जुमे को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं फाइल ऑफ जिहानासरीन। ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080।